Hello students, this is Durgesh Singh. I hope you all are safe and healthy. And today we are going to continue our topic which we have left, classification of resources. As I have already told you, the resources on the basis of origin, we have talked of this topic, and the basis of exhaustibility. So these two topics we have already covered, on the basis of origin and on the basis of exhaustibility. Now we will discuss the third point, on the basis of ownership. So in this we will discuss four categories: individual, community, national, and the last one is international. And the last one, on the basis of status of development. इसमें we will discuss four: potential, developed, stocks, and fourth is reserve. So these two topics we will cover today in this video. So let us start with the first one. The first is individual resource. This is on the basis of ownership. So resources which are privately owned. Resources which are privately owned by individuals is known as individual resource. So individual resource क्या है? On the basis of ownership, resources which are privately owned. ऐसे resources जो privately owned है उसे हम बोलते हैं individual resource. अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए. Whatever things you have in your home, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, it is privately owned resource, it is individual. Your house, you have land on which you do farming, that, and laptop, television, refrigerator if you have, almirah, cooler, AC. So these are privately owned resources and we call it a individual resource. So if you have a bike, car, these all are privately owned resources. So we have many things which we privately owned in our home is known as individual resource. Now the second is community resource. So let us talk now second point, that is called community owned resource. Community owned resources क्या है? What are community owned resources? So these resources are accessible to all the member of community. Like resources which are accessible to all the member of the community is known as community resources. Resources which are accessible to all the members of a community
is known as community resource, like public park, government owned buses, government owned companies जो जनरली पब्लिक यूज करती है, एंड these are called public resources. Picnic spots which is generally owned by governments, coal, all the resources like coal, electricity which generally government provides. In some states it is privatized, but in most of the states it is provided by the government, so it is a public owned resource, so we call it a community resource. So we discussed individual resource and the second one is a community owned resource. Now we will discuss the third, national resource. So let us talk of national resource. नेशनल रिसोर्सेज क्या है? टेक्निकली स्पीकिंग एवरी रिसोर्स इज अ नेशनल रिसोर्स विच इज इन अ नेशनल टेरिटरी. मतलब एक नेशन के अंडर में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज प्राइवेटली ओन्ड और कम्युनिटी ओन्ड, इट इज अ नेशनल रिसोर्स. बट लाइक इसका एग्जांपल अगर हम आपको दें तो जैसे गवर्नमेंट को अगर रोड बनाना होता है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू मेक अ रोड, और उसके बीच में अगर आपका घर है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े हैं, तो भी अगर वहाँ से रोड ले जाना बहुत कंपलसरी है, तो गवर्नमेंट उस रोड्स को, उस हॉस्पिटल्स को या उस घर को पैसे दे के, कंपनसेशन दे के उस हॉस्पिटल को तोड़ के वहाँ से रोड निकाल देंगे. या वो किसी का घर होगा तो उसे कंपनसेशन दे देंगे कि वो कहीं और जाके घर को बना ले, और उसके बदले में कंपनसेशन के साथ, और उसके बाद जो है उस घर को तोड़ के वहाँ से रोड निकाल दिया जाएगा. तो इवन जो आपका मकान है, जो आपका खुद का लैंड है, वो भी गवर्नमेंट, जैसे आपका लैंड है उस पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ से कोई ओवरब्रिज निकलेगा, कोई बाईपास निकालना है, तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन, एक अच्छा अमाउंट कंपनसेशन में देते हैं जिससे आपकी घर बना सकें. तो आप उसको कंपनसेशन लेके उस ज़मीन को आपको छोड़ना पड़ता है. तो इवन इट इज़ बिलोंग्स टू यू, इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक इट बैक, तो वो उसे वो ले लेंगे, उसके बदले में कंपनसेशन आपको मिलता है. बट इस तरह से अगर हम देखें तो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू अ नेशन, तो दैट्स वाई वी कॉल इट अ नेशनल रिसोर्सेज. सो ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन. Now the third one is, fourth one is an international resource. So let us talk of this. International resource. So in international resource, all the resources which cannot belong to any single country, those resources are called international resource. Like resources which is found beyond 200 nautical miles is called
200 beyond 200 nautical miles is called international resources, and there are international institutions जो ये डिटरमाइन करते हैं कि 200 नाटिकल माइल्स के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाद का जो एरिया है दैट ओपन ओशन बिलोंग्स टू अ नो सिंगल कंट्री एंड दैट रिसोर्स इज कॉल्ड अ इंटरनेशनल रिसोर्स। अगर इसको और थोड़ा समझें, जैसे ये इंडिया है, like this is India, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे श्रीलंका है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो इंडिया का यहाँ से जो 12, ये चूँकि यहाँ पे हमारा एक आइलैंड है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो यहाँ से इंडिया का 1200 नॉटिकल माइल्स मान लो यहाँ तक है, सॉरी 200, तो ये जो है पूरा एरिया, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEC। इसके बाद का जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर एरिया, इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे ये जो ओपन स्पेस, ओपन ओशन एरिया है, इसको यहाँ पे जो भी रिसोर्स होंगे उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बिना उनके परमिशंस के कोई भी यहाँ से रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकता है। तो ये जो है, अब जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे अगर आइलैंड होता है और उस पर किसी कंट्री का, जैसे मान लो इंडिया का यहाँ पे कोई आइलैंड होता है, तो ये एरिया भी उसके अंडर में आ जाता है, बिकॉज यहाँ से फिर हम कैलकुलेट करते हैं 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसी तरह से आप देखो, छोटे मोटे आइलैंड के लिए चाइना लड़ाई करता रहता है, खासकर साउथ चाइना सी में, सो दैट ही कैन बी एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज दैट आर नियरर टू दैट आइलैंड। तो इस तरह से इसको लेके, रिसोर्सेज को लेके लड़ाई होती है। जहाँ तक लैंड की बात है, तो आप देखो लैंड पे या तो न किसी कोई कंट्री है, अगर कोई कंट्री नहीं है तो किसी न किसी कंट्री का वहाँ पे कब्जा है, कोई स्टेट्स है वगैरह। तो इस तरह से लैंड तो बचा नहीं, बचा ओशन। तो ओपन स्पेस में जो ओपन ओशन एरिया है, उसमें जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है, जो ओशन एरिया है, वहाँ पे सी बेड में जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, एंड दैट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड इफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस अलाउड यू टू यूटिलाइज, अलाउड यू टू टेक दोज रिसोर्सेज। तो जैसे इंडिया को मिला है मैग्नीज नोड्यूल्स, जो कि 200 नॉटिकल माइल से आगे है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बियॉन्ड में है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इंडिया को ये अलाउ किया है कि वो मैग्नीज नोड्यूल्स को निकाल सकते हैं। सो वी गॉट दैट राइट, नाउ वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट दोज। So these are 4 points: individual, community, national and international resources. Now we will talk on the basis of status of development. So on the basis of status of development, we have potential resource. The first one is potential. So potential resource क्या है? What are potential resource? Resources which are found in a region but have not been utilized. ऐसे resources जो अभी तक रीजन में मिल चुके हैं but has not been utilized. So resources which are found in a region but has not been utilized. जैसे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में गुजरात और राजस्थान का
में जो इंडिया के पास विंड एंड सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वहाँ पे अगर हम सोलर सिस्टम लगा दें, खासकर वहाँ की जो लैंड है वो बहुत एग्रेरियन लैंड तो है नहीं जिस पे आप फार्मिंग कर सको, तो वो वेस्ट लैंड ऐसे पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा सोलर प्लांट लगा दें और विंड एनर्जी कुल विंड सिस्टम लगा दें जिससे कि हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकें या फिर सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज कर सकें, तो इस तरह से हम देखें तो हमारे पास पोटेंशियल तो है बट हमने अभी उसको यूटिलाइज नहीं किया है। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट पोटेंशियल रिसोर्स। सो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज, वी आल्सो हैव टेक्नोलॉजी बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, so that is these resources are called potential resources. So resources which are found in a region but has not been utilized is called potential resource. Now the second one, second point is developed. Developed resource. What is this developed resource? So resources which are surveyed and their quantity and quality have been determined for utilization is called developed resources. Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined. These resources called developed resources. तो ऐसे resources जिनका सर्वे हो चुका है, जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी हमने डिटरमाइन कर लिया है फॉर यूटिलाइजेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स। सिंपली अगर मीनिंग से भी देखें तो डेवलप्ड का मतलब ही ये होता है जिसके बारे में आपको सारी जानकारी है। जैसे डेवलप्ड नेशंस होते हैं तो दे हैव यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज इन अ वेरी प्लान्ड वे। तो वैसे ही हमारे पास अगर कोई रिसोर्स है जिसके बारे में हम सर्वे कर लिया है, उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी सबको डिटरमाइन कर लिया है यूटिलाइजेशन के लिए, जस्ट रेडी टू यूज़, तो उसे हम बोलेंगे डेवलप्ड रिसोर्स। Now we are going to talk of third resource, that is called stock. सो स्टॉक रिसोर्स क्या है? स्टॉक में आप किसको रखें? तो जनरली जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट not being able to use that just because we don't have the required technology to use it. Like we have hydrogen plus
ऑक्सीजन। सो पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन एक रिच रिसोर्स है एनर्जी का, हम इसको यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू यूज़ इट। सो इस तरह के रिसोर्सेज जिसके बारे में हमें टेक्नोलॉजी नहीं है बट दैट रिसोर्स हैज़ द पोटेंशियल, उसे हम बोलते हैं स्टॉक रिसोर्स। इसको लिख लें अगर तो, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but do not have the appropriate technology, appropriate technical know-how, So materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but do not have the appropriate technical know-how is known as stock resources. Now we are going to discuss the last point, and that is reserve resource. It is generally a subset of the stock. Let us see what are the difference. Reserve. रिजर्व रिसोर्स एज नेम ऑलरेडी सजेस्ट कि ऐसी चीज़ें जो आप रिजर्व कर लो, यानी किसी के लिए रोक के रखो। सो जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी रिवर के पानी को हम यूटिलाइज़ करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हम उसको बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक अभी यूज कर रहे हैं। तो वी हैव सेव्ड दिस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ रिजर्व रिसोर्सेज। सो रिजर्व का मतलब ये हो गया रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन ए लिमिटेड कंटेस्ट, इन ए लिमिटेड अमाउंट एंड कैन बी used in future, means we are saving those resources for future generation, and those resources are called reserve resources. So it is the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started just because we are saving it for the future generation. So इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का बता दिया आपको कि we have the
potential. We have technical know-how, but we are not using it. So this is all. So we have completed this topic, classification of resources. Next topic we will discuss is a development of resource. Development of resources. So we will discuss it tomorrow. In this we will see that resources are being utilized indiscriminately without caring for our future generations, and even recyclable resources are being overused so that it cannot be used, it cannot be recycled. Like ग्राउंड वाटर, आप देख ही रहे हैं कि ग्राउंड वाटर में जितना वो रिसाइकल होके नीचे जा रहा है उससे ज़्यादा हम उसको निकाल ले रहे हैं. सो वन डे इट विल आल्सो बी एग्जॉस्ट, तो ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा. इवन इट इज़ ए रिसाइकेबल, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में वी विल डिस्कस दीज थिंग्स. सो this is all, and one important point in this topic is agenda 21, from where generally questions are being asked in the board examination. I think this year one question was there from agenda 21, so we will discuss that topic, which is very important. So development of resources, we will discuss it tomorrow. So this is all. और ये सारे हमने जो पॉइंट्स हमने आपको क्लियर किए हैं, और इससे पहले भी जो हमने क्लियर किया था उसका प्रॉपरली एक आपका नोट्स होगा, और एक प्रैक्टिस सीट के लिए मैंने बोला ही था आपको कि एक प्रैक्टिस सीट की कॉपी होगी और एक आपका नोट्स का होगा. तो ये पूरा आप क्लियर करके जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका नोट्स हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू फॉर लिसनिंग.